Recording. Yes, good evening, students. Today we will start chemistry portion. How many of you belong to 9th class? Raise your hands. Who are in 9th class? Okay. Okay, students. Do you know anything about the matter? Yes, students, raise hand. What is matter? Matter is anything that occupies space and has mass. Okay, very good. That occupies space and have mass. Any other student, can you tell me what is the meaning of that this occupy space? Explain it. Meaning of that matter occupy space. Volume, ठीक है. Yes, Hardik. Yes, ma'am. Yes, you tell beta. Ma'am, I think so that if you have any box, that box contains a space. Yes. That is its volume. So we can call it a matter. Yes, right. So, like in the room in which in which you are sitting, you are occupying some space of the room, है ना? उस रूम का अपना एक स्पेस है और उस रूम के अंदर आप बैठे हो, आपके अंदर वहां पे कोई फर्नीचर रखा है, तो उसने उस रूम के स्पेस को कवर कर रखा है. So that is called occupy the space. Okay. So matter is the material which occupies the space and have mass. Right? Space, we can say that is 3D, three-dimensional. So we consider for space volume, not the surface area. Okay. Okay, how can we classify matter? Yes, Anuj Patel. Ma'am, matter can be classified by their volume and space. Yes. As well as there are many properties that it is in solid, liquid, gas, plasma, both in condensate. But according to 9th standard, we are going to study only in solid, liquid, gas. Yes, only 3 categories because these 3 states of matter exist at the room temperature also. Okay, so plasma and condensate, for that we need very high temperature, which is not possible. Okay, so matter के examples को अब हम लें, तो आप कोई भी example बताइए बेटा matter का. अमृतांशु. Ma'am. Yes. Any example of matter? Ma'am, ball. Ball. Okay, very good. Bat and ball. Yes. Is hate a matter? Mukul. No, ma'am, it's an emotion. Yes, it's an emotion. So this emotion doesn't occupy space. It occupies space only in our heart or in our brain only, है ना?
It will not occupy the space on the earth. So we can say this is not a matter. Now we can classify the matter in two ways. One is physical classification and other one is chemical classification. So according to physical classification, we will consider the physical state. So there are three types: solid, liquid, and gas. And there is one more classification, that is called chemical classification, in which we will check the properties of the chemical. On that basis, matter is of two types: pure substance and mixture. Yes, students, air belongs to which category as per physical classification? Yes, Jayavardhan. Anuja Rasishri has given correct answer. Jayavardhan. Okay, Bhaskar. Ma'am, gas. Gas. That is a gas. According to the physical classification, it is a gas. Air occupies the space. How can you explain that air occupies the space? कोई ऐसी जगह जहां पे आपने देखा हो कि एयर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है? Ma'am, it occupies the space in container in which it is kept. यस, और मतलब वहां पे हमें दिखाई नहीं देगा. मुझे कोई ऐसा एग्जांपल बताइए No, ma'am, no, ma'am. It is जहां पे आपको दिखाई दे. बैलून. वेरी गुड. चैट बॉक्स में आंसर आ रहा है बैलून. बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है बेटा. बैलून में जब आप एयर को फिल करते हो तो बैलून जो है वो इन्फ्लेट हो जाता है, मींस कि उसके अंदर कुछ फिल हो गया, उसका जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड हो गया. सो दैट इंडिकेट्स दैट एयर ऑक्यूपाइज द स्पेस. ओके, एक और बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है बेटा इसका. आप एक ग्लास लीजिए, उस ग्लास के बॉटम में आप एक पेपर या एक हैंकी को लगा दीजिए. आफ्टर दैट डिप दैट इन दी, उसको उल्टा करके इन्वर्ट करके आप उसको वाटर की जो बकेट है आपकी उसके अंदर वाटर आपने फिल कर रखा है. तो आपने एक ग्लास लिया, इसके अंदर यहाँ पे आपने इसको हैंकी को लगा दिया. ओके, या पेपर लगा दिया, टिश्यू पेपर लगा दिया. अब इसको इसमें जब आप इन्वर्ट करते हो तो इन्वर्ट करने पर आप इसमें इसको पूरा नीचे तक डिप कर दोगे और आप देखोगे कि जब आप इसको बिल्कुल ऐसे का एज इट इज बाहर निकालते हो तो आप देखोगे कि tissue paper is still dry, it is not wet. तो ऐसा क्यों हुआ? It is still dry, the tissue paper is still dry. Why? Joyita Sen. Yes, बच्चा बताइए आंसर, कैसा क्यों हुआ? Present in the glass. Yes, in the glass there was air was present, और जब आप उसने आपने उसको वाटर के अंदर डाला तो एयर ऊपर चली गई. तो उस एयर के कारण यहाँ तक जैसे एयर रह गई, तो ये जो पार्ट है इसमें एयर है तो वाटर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. सो इट विल रिमेन ड्राई. Okay, there is one more thing. What is the difference between solid, liquid and gas?
Okay, Roseanne. Roseanne. Okay, Hardik, you tell beta. Yes. Ma'am, the main thing is that the atoms, or we can say the space. Yes, yes. Space between Ma'am, particles is. मैम वो हम एक एग्जांपल लेते थे ना कि एक बॉक्स के अंदर सॉलिड फॉर्म में तो एकदम पास पास वो सर्कल्स बनाते हैं, लिक्विड बिल्कुल फॉर्म ठीक। के अंदर वो थोड़े से दूर दूर होते हैं और गैस के अंदर एकदम ही दूर होते हैं, वो वाला एग्जांपल है मेरा। हाँ हाँ हाँ, तो बेटा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो सॉलिड है, इन दैट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। जो लिक्विड है उसमें पार्टिकल थोड़ा दूर हो जाते हैं, और जो गैस है उसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ओनली दिस इज द डिफरेंस। ओके, ये एक बहुत बेसिक पॉइंट है बेटा, जो हायर क्लास के स्टूडेंट्स को भी कभी क्लियर नहीं होता, इसलिए आप यहीं से अपनी छोटी क्लास से इस चीज को सीख के चलो कि सॉलिड लिक्विड गैस में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। द नंबर ऑफ, मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। लाइक इफ वी हैव H2O, ठीक है, सो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वाटर, वाटर वेपर और आइस। इसकी तीनों फॉर्म आप देखते हो, तो यहाँ पे जो ये तीन फॉर्म्स हैं बेटा, इन all these three forms the molecule or the particle is H2O। ऐसा नहीं हो रहा कि आप आपने इसको हीट किया, इसको वेपर स्टेट में कन्वर्ट किया तो इट कन्वर्टेड टू H2 and O2। नो, ये पार्टिकल एज इट इज रहेगा। ठीक है, अभी आप 1 ईयर से स्कूल नहीं जा रहे हो, तो मैं इसको ये कहती हूँ कि आप सॉलिड लिक्विड गैस समझना है, तो जब आप यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम, दैट इज योर सॉलिड स्टेट, मींस आप लोग सब बहुत पास पास में। ओके, व्हेन यू हैव गॉन टू द प्लेग्राउंड, तो आप थोड़ा सा एक दूसरे से आपका डिस्टेंस बढ़ गया, आपकी मूवमेंट पहले से बढ़ गई है ना, सो दैट इज योर लिक्विड स्टेट। उसके बाद क्या हुआ, स्कूल की छुट्टी हो गई, आप सब अपने अपने घरों की तरफ चले गए, पूरी सिटी में फैल गई। नाउ देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन यू ऑल, है ना, अब आप अपने अपने घर में हो, तो दैट इज योर गैस स्टेट। हमने स्टेट्स को चेंज किया, क्लासरूम में यू वर सॉलिड स्टेट, प्लेग्राउंड में आप लिक्विड स्टेट में आ गए, और जब आप अपने अपने घर पे पहुंचे तो आपकी स्टेट को हम क्या कह रहे हैं, गैस। बट देयर इज नो डिफरेंस इन योर ओन, आपकी खुद की बॉडी में तो कोई चेंज नहीं ना, अगर आप स्टिल इंटैक्ट हो। सिमिलरली जो मॉलिक्यूल होगा या पार्टिकल होगा बेटा, सॉलिड लिक्विड गैस में आप उनको कन्वर्ट कर रहे हो, तो अपने पार्टिकल में कोई चेंज नहीं किया है, पार्टिकल रिमेन्स सेम। ओके, दिस इज द मेन। अब आपको यहाँ से उनकी जो मूवमेंट है उसके बारे में भी समझ में आ गया होगा। सॉलिड की जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की बहुत कम होती है, लिक्विड के पार्टिकल्स की मूवमेंट ज्यादा होती है, और गैस के पार्टिकल्स की मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है, राइट। नाउ नेक्स्ट classification is, okay, there is one thing, that is gas applies pressure। मैं सिर्फ बेटा, क्योंकि आप लोगों ने कहा ये फर्स्ट चैप्टर आप सबको आता है बहुत अच्छे से, मैं वो पॉइंट ले रही हूँ जिन पे जनरली स्टूडेंट्स मतलब गलत रेस्पॉन्ड करते हैं। प्रेशर, ओके, हाउ कैन यू एक्सप्लेन कि गैस जो है वो प्रेशर अप्लाई करता है? यस, जोईता सेन, you are speaking something, I think you want to give the answer, Joita Sen. Okay, Yes, ma'am. yes Joita, gases exert pressure,
इसका मीनिंग क्या है कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर? Ma'am, in a balloon, it Yes. exerts pressure. यस, वेरी गुड, दैट्स व्हाई इट गेट इन्फ्लेट, है ना? वो इसीलिए तो इन्फ्लेट हो गया, जब आपने बैलून के अंदर एयर को डाला तो वो इन्फ्लेट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उसकी जो वॉल है, उस वॉल के ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। वेरी गुड बेटा। और ये टॉपिक 11th क्लास में भी है और 11th क्लास के स्टूडेंट्स भी इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। गुड। यस हार्दिक, डू यू हैव एनी डाउट? Ma'am, I had another example actually. Yes, give. Ma'am, the example is the oxygen tank where we can generate an air oxygen, gaseous form of oxygen. ओके, यस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो जो गैसेस हैं वो प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं। क्यों एक्सर्ट करती है ये प्रेशर, ये बताइए। गैस ने प्रेशर क्यों एक्सर्ट किया? आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर है, वेरी गुड, कि बैलून वाला एग्जाम्पल ले लिया हमने कि वो एक्सपैंड कर जाता है, इसका मतलब उसके ऊपर प्रेशर लगता है। तो गैस प्रेशर को एक्सर्ट क्यों कर रहा है? ओके, मुकुल अरोड़ा। Well, it exerts a pressure because the particles keep moving and always exert a force. यस, देखो जो गैस का पार्टिकल है बेटा, लाइक दिस इज द कंटेनर, इस कंटेनर में हमारे पास पार्टिकल्स, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स। अब गैस के पार्टिकल्स में क्या, हमने क्या कहा, मोशन बढ़ती जा रही है। सॉलिड में मोशन सबसे कम, लिक्विड में उससे ज्यादा मोशन, गैस में उससे ज्यादा मोशन। तो गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अब गैस के पार्टिकल्स क्या है, इट में एटम, इट में आयन, इट में मॉलिक्यूल्स, है ना? दे डोंट हैव आईज, दिखता नहीं है इनको, है ना? इनको दिखता नहीं। अब दिखता नहीं है तो क्या, ये तो मूव करे जा रहा है। अब जब ये पार्टिकल मूव करेगा, करते 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 ये इस वॉल के साथ टकराएगा, इसको थोड़ी ना पता सामने से कुछ आ रहा है, ये मूव करते करते उसके साथ टकरा गया। जब टकराएगा तो इसको पता ही नहीं सामने क्या है, जितनी स्पीड से जा रहा था उतनी ही स्पीड से टकराएगा। जब ये इसके साथ कोलॉइड करता है तो बेटा हर पार्टिकल कोलॉइड करेगा तो इसकी वॉल पे हमेशा क्या लगेगा, एक प्रेशर लगेगा। सो गैसेस एक्सर्ट प्रेशर बिकॉज ऑफ द random motion of the particles. Yes, other forms also apply pressure. अब आपको पहली बात तो ये समझ में आ गया कि ये प्रेशर क्यों अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर रैंडम मोशन ना। मोशन सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा किसमें, गैसेस में, इसलिए हम गैसेस के अंदर प्रेशर को सबसे ज्यादा कंसीडर करें। वाटर भी प्रेशर अप्लाई करता है, लिक्विड के पार्टिकल्स की मूवमेंट भी होती है इसलिए वो भी प्रेशर अप्लाई करते हैं। और सॉलिड के पार्टिकल्स क्योंकि मूव नहीं करते इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते कि वो प्रेशर को अप्लाई करते हैं। ओके अनाइशा, क्लियर? ओके, Naksh has given the answer in the chat box, that is totally correct answer. Now next is chemical classification. What do you mean by pure substance? Yes, Harmanjot. What is pure substance? Pure substance is a kind of matter in which the chemical composition, that is the molecular structure or the atomic structure, they are the same. They are same throughout the matter. Like if we talk about compound and elements. Yes. So ma'am, in element, there is only same type of atom throughout the matter. If it is gold, then every atom would be of gold. And then in water, we can see that every molecule will be of H2O only, no other molecule. Then it is called a pure substance. Yes. In water, ये एक आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हमारे पास वाटर है तो वाटर के केस में जनरली जो स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज होते हैं कि मैम देयर इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ, बट नॉट ऑल द पार्टिकल्स आर नाउ H2O. सारे पार्टिकल्स क्या है बेटा, H2O है. So pure substance is that substance which has only one type of particles. One type of
particles, that is called a pure substance. Now that pure substance, we can divide that pure substance into two types, that is element and compound. Yes, what are elements and what are compounds? Sharvari. Atharv. Yes, Atharv, are you there? Tushar. Okay, Deva. Yes, ma'am. Yes, जो बेटा. एलिमेंट बनते हैं वो एक ही मेटल का जो है एटम से बनते हैं Okay. और जो कंपाउंड है अलग अलग एलिमेंट जो मेटल्स और नॉन मेटल्स का उनका मिलाने के कारण हो जाते हैं केमिकली. Yes. Yes. So that is the compound. Okay, Deva, you belong to which state? From where are you? Yes, Deva. हम तमिलनाडु. Okay, ठीक है. Yes, so element is having only one type of atoms. सारे एक ही टाइप के एटम होंगे, ठीक है. And we cannot convert this substance into simpler chemical form. इससे ज्यादा सिंपल फॉर्म में इस सब्सटेंस को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. That state is called elemental state. Okay. ओके, एलिमेंट के एग्जांपल्स में बेटा मैं आपके से लेते हैं हम हाइड्रोजन H2. दिस इज एलिमेंट. ओके, ऑक्सीजन इज एलिमेंट. डू यू नो समथिंग अबाउट ओजोन? ओजोन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन? एनीवन ऑफ यू नो? आदित्य राजपूत. Yes, Aditya. Ozone layer is the layer of Earth, ma'am, that protects us from harmful rays of sun. Yes, harmful rays. Okay, can you tell me the formula of ozone, Aditya? Ma'am, I don't know. Okay, no problem, beta. No issue. Yes, Aditi. Ma'am, O3. O3, बिल्कुल ठीक. Very good, beta. O3 is the formula of the ozone. Okay, now what do you think, that ozone is element or compound? Ritanjay. Yes, ma'am. Yes. जो ओजोन होता है वो मैम O3 का बना है. हाँ, this is element or compound? Ozone is element or compound? Ma'am, element. Element. So you are able to find. आपने एलिमेंट के लिए लेना ही है बेटा जिसमें एक ही टाइप के एटम्स हैं, दैट इज एलिमेंट. इफ आई एम राइटिंग O3 means this is element. Okay. In the case of sulfur, its formula is, molecule of sulfur is S8, so this is element. How many total elements are there which have been discovered till now? Ma'am, 118. 118. Yes, that is 180 elements. Okay, only these much elements are known. So number of elements are very less. But इससे जो compound बनेंगे वो बहुत ज़्यादा है. Number of compounds are there. They are infinite in number. For example, there are alphabets in English. How many alphabets in English? 26 only. और इन 26 अल्फाबेट से हम कितने वर्ड बनाते हैं? काउंटलेस.
सिमिलरली अब आपको एलिमेंट और कंपाउंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. एलिमेंट्स आर ओनली 118. व्हेन दीज एलिमेंट्स कंबाइन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, है ना, अलग अलग फॉर्म में कंबाइन होते जाएंगे एंड वी विल गॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स. तो हमारे पास कंपाउंड आएगा. ठीक. अब कंपाउंड क्या होता है ये कौन बताएगा? खुशी कुमारी. खुशी. Yes, Akanksha. When we combine elements in a definite composition. Yes, there is formation of the compound. तो बेटा ये कंपाउंड वर्ड बना ही कंबाइन से. ठीक है. हमारे पास एक और जो है प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट लिए बेटा. एक हमारे पास आएगा मिक्सचर. तो कंपाउंड को मिक्सचर के साथ थोड़ा सा हमें कंपेयर करके स्टडी करना है. ठीक है. कंपाउंड का मतलब कहाँ से आया बेटा? कंबाइन. यहाँ पे एलिमेंट आपस में कंबाइन करता है. ओके. यस हार्दिक. Do you have any doubt? Yes, Hardik. Compound means what it is not visible here. What means compound? Okay, not visible. Compound. Yes, ma'am. It is written combine. हाँ, combine. Compound means combine. Okay. So in the compound, more than one means two or more elements combine with each other and they lose their own identity. वो आपस में कंबाइन होकर के बेटा अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते. बहुत अच्छा सा एग्जांपल हम लेते हैं बेटा. सोडियम मेटल के बारे में थोड़ा बहुत पता है आप लोगों को. सोडियम इज वेरी शाइनी मेटल, सॉफ्ट मेटल. वी कैन कट विद हेल्प ऑफ नाइफ, मींस दैट इज अ सॉलिड मटेरियल. ओके. शाइन करता बेटा, बहुत लस्ट्रस है. पानी में डालते ही इट स्टार्ट्स बर्निंग. पानी के साथ इसकी बड़ी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. ओके. दिस इज सोडियम मेटल. इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस. क्लोरीन इज गैस एट रूम टेम्परेचर. दिस इज अ शाइनी सॉलिड और वाटर के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करता है. क्लोरीन इज अ गैस एंड इट इज yellowish green gas, or you can say greenish yellow gas. Means we cannot chlorine जो गैस है इसकी बेटा बड़ी पंजेंट स्मेल होती है. पंजेंट मीन्स जो हमें चोकिंग लगती है, हमें बहुत ज्यादा हम इसको इरिटेशन फील होती है अगर हम उसको इनहेल करते हैं. सोडियम को भी आप टच नहीं कर सकते बिकॉज इट विल गिव यू बर्निंग सेंसेशन. क्लोरीन गैस में मैं कह रही हूँ कि आप इसको इनहेल नहीं कर सकते. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. डू यू नो व्हाट इज सोडियम क्लोराइड? क्या होता है सोडियम क्लोराइड? यश जैन. यश. मैम टेबल सॉल्ट. टेबल सॉल्ट घर में पड़ा है ना. किस कलर का होता है बेटा यश? वाइट. वाइट. क्या हाथ में रख सकते हो? यस मैम. स्मेल भी कर सकते हो? यस मैम. Yes. Means this is compound and this is not showing any property of sodium and chlorine. है ना. ये जो अब सोडियम क्लोराइड हमारे पास कंपाउंड आ गया, दिस इज नॉट शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ समथिंग डिफरेंट. सो दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड. ओके स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर?
नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, जस्ट आपको उससे बहुत ज्यादा मिक्सचर और कंपाउंड भी क्लैरिटी मिलेगी, यहाँ पे आपको एलिमेंट और कंपाउंड की क्लैरिटी मिली। आई एम हैविंग हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, दीज टू कंबाइन टू फॉर्म वाटर। ये कॉम्बिनेशन हुआ है बेटा, कॉम्बिनेशन मीन्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। ओके, हाइड्रोजन को हम क्या कह रहे हैं बेटा, गैस, it is combustible gas. What do you mean by combustible gas? Yes, Harmanjot. Harmanjot, you tell beta, what do you mean by combustible gas? Ma'am, the combustible gas is a gas which undergoes combustion, which means it reacts with oxygen and produces heat as a result. But the simple meaning of combustion तो हाई फाई हो गया है ना, मैंने भी बोला उसको सिंपल वे में बोला है, तो combustion को हम सिंपल वर्ड क्या यूज, एक लेमैन क्या यूज करता है, बर्निंग। वेरी गुड, बर्न, दैट मींस बर्न। तो हाइड्रोजन बर्न होती है, ओके। और हाइड्रोजन को जो है ना, दैट इज द बेस्ट फ्यूल। ये आपको और बता देती हूँ कि आपने एनटीएससी का एग्जाम देना है, तो आपको तो जितनी वास्ट नॉलेज हो आपके लिए अच्छा है। हाइड्रोजन की बर्निंग जो है, उसकी जो रिएक्शन है बेटा, उसमें इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि वो हमारे लिए बेस्ट फ्यूल है। एक जो फ्यूल की बर्निंग का हमारा नेगेटिव पॉइंट होता है कि उसमें पॉल्यूटिंग गैसेस इवॉल्व होती हैं, बट इन दिस केस देयर इज प्रोडक्शन ऑफ द वाटर, वाटर वेपर की फॉर्म में आएगा बेटा, उसका कोई पॉल्यूटिंग इफेक्ट नहीं है, तो हाइड्रोजन इज द बेस्ट फ्यूल। बट वो बात अलग है कि हमारी अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई है और हमारे पास इतना हाइड्रोजन, मतलब उसको बर्न करना हमें नहीं आता, ओके। तो वो उस पर रिसर्च चल रही है, ओके। सो दिस इज अ कंबस्टिबल गैस, बर्न होती है। ऑक्सीजन इज आल्सो अ गैस एट रूम टेम्परेचर, ये भी गैस है, एंड इट सपोर्ट्स बर्निंग। ये बर्निंग को क्या करता है बेटा, सपोर्ट। ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, ये भी देखो केमिकल्स के अंदर हमारी वाली जो नेचर है ना, वो सारी की सारी देखती है। कोई जल रहा होता है, किसी को जलाने की आदत होती है, मतलब ह्यूमन नेचर देखो, है ना, होता है कि नहीं होता। इन दोनों की रिएक्शन हुई, रिएक्शन से बना क्या, वाटर। क्या करते हो बेटा वाटर से आप, कहीं आग लग जाती है तो किससे आग बंद करते हो, इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, यूज करते हो कि नहीं, पानी डाल दो कहीं पे भी आग बुझ जाती है। देखा प्रॉपर्टी कितनी बदल गई। सो यहाँ पे ये क्या हुआ आपका बेटा, केमिकल, नया केमिकल बना। सो दिस इज द कंपाउंड, ये अब आपका क्या है, कंपाउंड। और रूम टेम्परेचर पे बेटा दिस विल एग्जिस्ट एज द लिक्विड, ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, दोनों चीजें गैस। नाउ आई एम हैविंग टू कंटेनर्स, दो कंटेनर मैंने अलग अलग लिए, एक कंटेनर में मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को डाल दिया दोनों को, और मैंने यहाँ पे ऐसी कंडीशंस लगाई हैं कि ये रिएक्शन शो नहीं कर सकते। बट इस कंटेनर में मैंने इन दोनों को इस टाइप की कंडीशंस दी हैं सो दैट दीज टू कैन रिएक्ट विद ईच अदर, और रिएक्शन से क्या बन गया बेटा, वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको वाटर मिलेगा, तो वाटर कौन सी स्टेट में आपको दिखने लगेगा बेटा, लिक्विड स्टेट में। बट ये अभी भी आपके पास क्या है, मिक्सचर। और इस मिक्सचर के फिजिकल स्टेट बताइए, व्हाट विल बी द फिजिकल स्टेट, मुकुल। Sorry, ma'am, can you repeat? I had net issues. Okay, no problem. What is the physical state of this mixture? Gas. Gas, because still hydrogen and oxygen gas is present in this mixture. They have not combined. So this is the mixture. अब इस mixture को अगर मैं conditions दूं, hot heat करूं, this hydrogen will start to react with oxygen and it will start to burn. Means this mixture will show the properties of hydrogen and oxygen gas. ये उसकी properties को show करेगा. But water जो बन गया, इस water में hydrogen gas की और oxygen gas की कोई property नहीं है. Excuse me, ma'am. Yes, बेटा. Ma'am, what's table salt and common salt different or same thing? Same, बेटा same. Okay.
टेबल सॉल्ट यूज जो करते हैं, मतलब वो हम उसको, ये नाम ना अलग अलग ये कुकरी शोज वगैरह से आ गए हैं, अदरवाइज केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो दे आर बोथ आर सेम, टेबल सॉल्ट और दैट वन. ओके. Yes, students. Now element and compound is clear. Yes, Hardik, if you have any doubt. It's not a doubt. I have a biggest example of a difference of mixture and compound. Okay, give. Can I? बताओ बेटा. Ma'am, the biggest example is water. Ma'am, we will take two boxes. In one box we will take hydrogen gas, and second box we will take oxygen gas. And if we will take the candle to the oxygen, it will start burning more. Okay, yes. And if we will take in hydrogen, it will be, मैम जैसे इसको बोलते हैं ना शांत हो जाएगी, तो मैम वो एक पॉपिंग साउंड के साथ शांत हो जाएगी. नो बेटा, हाइड्रोजन गैस जो है वो तो बहुत ज्यादा, हाइड्रोजन गैस इज कंबस्टिबल गैस. आप जो पॉपिंग साउंड के साथ वो बंद हो जाती है, जिस पॉइंट को आप कह रहे हो, वो इसलिए होती है क्योंकि आप टेस्ट ट्यूब में से यूज कर रहे हो. टेस्ट ट्यूब में थोड़ी सी क्वांटिटी ही थी, वो पॉप साउंड देकर के उतनी कितनी बर्न होगी. If you are taking a large box and that contains large amount of hydrogen, that will burn, start burning. Explosive है बेटा, ये रिएक्शन कभी करनी भी नहीं चाहिए. Okay, there will be a pop sound. Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. And if we will combine it in one box. Yes. Ma'am, if we will combine it in one box, and if we will take the candle, it will pop also, and it will burn more also. Yes, ठीक है बेटा आपका बात. And we can take this as an example of mixture. नहीं, आप क्या कह रहे हो, हमने एक बॉक्स में इन दोनों को कंबाइन करवा दिया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को. Yes, ma'am. कंबाइन करने से वाटर बना, or we have mixed only? Yes, ma'am, but ma'am, we have only mixed. हाँ, yes. तो देखो बेटा, अब आपने यही सीखना है कि अब आप इतनी बड़ी क्लास में हो गए, एनटीएससी का एग्जाम देना है, मिक्स करना और कंबाइन करना. नाउ दीज टू आर टू डिफरेंट टर्म्स फॉर यू. कंबाइन मतलब वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए, रिएक्ट कर गए, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस. और मिक्स करने का मतलब सिर्फ आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स किया है, वो अपना अपना फ्रीली घूम रहे हैं. Okay, yes. And ma'am, if we will take the candle to there, it will burn more, and also it will pop. Yes. And ma'am, if we will create a electric shock in them, it will produce H2O, means water. Yes. There will be a chemical bonding between the H2 and O. मतलब hydrogen and oxygen. Oxygen, yes. Yes, ma'am. Yes, this hydrogen is the and oxygen. And that there is production of the liquid, and that will extinguish your candle. Okay, this is the same example which I have given also, but you have also given. Yes, Ritanjay, you have any doubt? Yes, beta. यस मैम. Yes. मैम वो जब भी मैं केमिकल्स सब्जेक्ट या केमिस्ट्री जब भी पढ़ने जाता हूँ, तो मेरे को हमेशा H2 और O2 दोनों को रिएक्शन तो हमेशा दिखते ही हैं, लेकिन जब इसका रिएक्शन जब मिलता है तो हमेशा H2O मिलता है, जिसमें H का 2 तो है लेकिन O का 2 मिलता ही नहीं. तो मैं ओके, O2 क्यों नहीं मिला? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन रितंजय. ओके रितंजय, अभी आपकी क्लास कौन सी है? यू आर व्हिच क्लास यू आर स्टडीइंग? 9th? यस मैम. ओके, हाँ, तभी आपको नहीं आया. चलिए इसको देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक है, लिखते हैं जब हम, तो इसको हमने लिखा H2 और O2, और बना क्या बेटा? वाटर. तो H2 तो दिख रहा है, बट O एक ही रह गया, O2 नहीं है यहाँ पर, है ना? तो ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर जो है अब हम करते हैं इसको.
देखो क्या होता है बेटा रितंजय, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए, ठीक, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए, जैसे हमारे हैंड्स और फिंगर्स होते हैं ना बेटा, वैसे ही इन एटम्स के भी हैंड्स होते हैं। हाइड्रोजन का एक ही हाथ है, ऑक्सीजन के कितने हाथ है? 2 हाथ, ठीक। तो हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ एक हाथ से ज्वाइन किया हुआ, ऑक्सीजन ने अपने दोनों हाथ दूसरे ऑक्सीजन के दोनों हाथों के साथ जोड़ रखे। अब हमें बनाना है क्या बेटा? वाटर, ठीक है। तो क्या होता है, हम पहले इसके बॉन्ड को तोड़ते हैं, इनके अंदर इसको हम क्या कहते हैं बेटा? बॉन्ड। ये टूट गया और ये टूट गया, तो हमारे पास क्या है बेटा? H और H आ गया, O और O आ गया। अब आपको पता है इस हाइड्रोजन का तो एक हाथ है बेटा, इस ऑक्सीजन के कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं। इस ऑक्सीजन के भी कितने हाथ हैं? 2 हाथ है। पहले तो आपस में जुड़े हुए थे, अब फ्री कर दे तो 2 हाथ हो गए। अब इस ऑक्सीजन के साथ आपको हाइड्रोजन को अटैच कर, तो बताइए क्या अटैच हो? ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गए, जुड़े कि नहीं जुड़े? सो व्हाट इज फॉर्म्ड? दिस इज फॉर्म्ड, दिस वन वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। अब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन बेचारा हमारा अकेला रह गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक H2 हम और लेके आएंगे, फिर ये टूटेगा और फिर ये एक H इसके साथ, ये एक H इसके साथ, तो ये बनेगा HOH। तो जो हम अभी आपको लिख के बताते हैं ना बेटा, वो आधी रिएक्शन सही क्या है, इसके बीच में आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा एरो। तो हम 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लेते हैं, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेते हैं, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये चीज जो है ना, ये 10th क्लास में आती है और 9th क्लास के बच्चों को हमेशा ये डाउट रहता है, बट नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। यस रितंजय, क्लियर है? ओके, यस मैम क्लियर है। ओके, वेरी गुड। I have written some examples. Okay, find out which one is element. Aryan, Aryan Singh. ओके, आज मेरा फर्स्ट डे है ना, मुझे अभी थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी यूज टू होने में मुझे टाइम लगेगा। यस अदिति, डायमंड होगा। ओके, यस डायमंड इज एलिमेंट। ओके, ओनली डायमंड इज एलिमेंट या कोई और भी एलिमेंट है इसमें? यस भास्कर, मैम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड कार्बन। एंड कार्बन। और डायमंड आएगा या नहीं आएगा? यस, जिन बच्चों की वीडियो ऑन है वो यस दे आर नोटेड। Yes, that is diamond is also element. Okay, diamond is made up of carbon atoms only. Okay, so this is element, right? Now next I want to know what are compounds. So जो rest हैं, जो भी बचे हैं बेटा, ये compound है आपके पास, ठीक है?
अब एनटीएस देखो 9th क्लास में ये चीज नहीं है बट 10th क्लास में है, आपको करनी है, इसलिए मैं आपको इसी चीज को कंपाउंड को आगे लेके जा रही हूँ। कंपाउंड जो है बेटा वो होते हैं आपके पास 2 टाइप के, राइट? आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट। यू हैव 9th क्लास के स्टूडेंट, 10th क्लास के स्टूडेंट्स को तो आता होगा, 9th क्लास के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आइडिया कम होगा कि एलिमेंट्स जो है बेटा, इन एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। टोटल एलिमेंट्स जो हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। Okay. Now ionic compounds are formed when metal react with the non-metal. Okay. When a metal react with non-metal, there is formation of ionic compound. और जब non-metal के साथ combine करता है, then there is formation of the covalent compound. ये आएगा metal and non-metal और ये आ गया non-metal and non-metal. Then there is formation of covalent compound. For example, this sodium chloride is ionic and hydrogen chloride is covalent. This is ionic compound and this is covalent compound. Sodium is a metal and chlorine is a non-metal. So this is ionic compound. Hydrogen and chlorine both are non-metals. That's why the compound formed by these two is covalent. Okay. तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे so that we will be able to find which element is metal, which is non-metal. और फिर इनकी प्रॉपर्टीज की आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज कैसे आपको देखनी है, कैसे इनको फाइंड करना है, उस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। Yes, students, any doubt? If there is no doubt, lower your hands. Yes, Anaisha. मैम मुझे पूछना था कि हाँ, मैम बेटा। जो मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स है मैम उनमें क्या डिफरेंस है? तो मैम हम सॉरी मैम मॉलिक्यूल्स को एलिमेंट्स कह सकते हैं? यस, मॉलिक्यूल बेटा देखो, अब आपके पास जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जैसे मैं लिखती हूँ H2, दिस इज अ मॉलिक्यूल. I have written hydrogen chloride, this is also a molecule. Molecule can be of an element or molecule can be of a compound also. But molecule जो होगा जब compound के केस में है तो that is only for a covalent compound. जो आपका आयनिक कंपाउंड होता है उसका हम मॉलिक्यूल नहीं कहते, दैट इज नॉट अ मॉलिक्यूल, दैट इज जस्ट अ फॉर्मूला. ओके, तो मॉलिक्यूल पे आएंगे अब हम. मॉलिक्यूल और ये करना हमने, मॉलिक्यूल क्या है और आपका एटम क्या है उसको भी हम करेंगे. तो H2 मॉलिक्यूल है, HCl भी एक मॉलिक्यूल है. मॉलिक्यूल एटम एलिमेंट का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी हो सकता है. जब आपको आयनिक और कोवलेंट समझ में आएगा उसके बाद आपको कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बारे में समझ में आएगा. This is also a molecule. This is also a molecule. Okay, Naisha? Yes, Anuj? Ma'am, yes, ma'am, please scroll down it one, ma'am. This is please. Ma'am, little more. Ma'am, the examples you have given of elements and all, ma'am, that you have written O2, H2 and all, ma'am, on that one.
Yes, ma'am. For ma'am, carbon you have written only, ma'am. Please. Yes, yes, You yes. have This written one, na? C, ma'am. How, ma'am? For all, ma'am, T2 is there, and for carbon only C is there. Yes. No, ma'am. This. Yes, ma'am. This one. हाँ, मैं समझ गई बेटा आपकी बात कि आप ये कह रहे हो, H2O2, बिल्कुल but ठीक। carbon Yes, only yes. C. बेटा यहाँ पे क्या है कि कार्बन एग्जिस्ट एज दी सॉलिड, ओके। तो इन दिस केस टू मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर कंबाइन विद ईच अदर। बहुत ज्यादा नंबर जो होता है कार्बन का वो आपस में कंबाइन है, सिर्फ कार्बन ही है और वो बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, तो हम उनके नंबर को, दैट इज काउंटलेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर देयर। जो चीज भी आपको सॉलिड स्टेट में मिलती है बेटा या लिक्विड स्टेट में मिलती है, लाइक मरकुरी है, या मैं जिंक लिखूंगी आई विल राइट Zn, आयरन लिखूंगी आई विल राइट Fe, तो मरकुरी लिखूंगी आई विल राइट Hg। सिर्फ जो गैस स्टेट में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है बेटा, उसका रीजन ये है कि वहां पर कोवलेंट बॉन्डिंग है, छोटी बॉन्डिंग है, एक छोटा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। क्योंकि ये छोटा सा ही मॉलिक्यूल है, इसीलिए ये गैस स्टेट में, राइट? जैसे जिंक है Ma'am, but ma'am, but here, ma'am, one is in solid state. यस बेटा, स्पीक अगेन। Ma'am, in here, ma'am, you have written C, ma'am. Is this carbon now is in solid state? Yes, this is in solid state. Carbon exists as solid. कार्बन मीन्स आप देखो, डायमंड ले लो बेटा, डायमंड इज सॉलिड। ग्रेफाइट फॉर्म ले लो कार्बन की, दैट इज सॉलिड। आप कोल ले लो, कोयला जिसको हम कहते हैं, कोल इज आल्सो सॉलिड। कार्बन एग्जिस्ट एज सॉलिड। One more question, ma'am. Ma'am, Yes. when H2 and O2, ma'am, combine, ma'am, then, ma'am, two molecules of water is formed. Yes, two molecules of water are formed. Okay, ma'am. Thank you, Two ma'am. hydrogen molecule, one oxygen molecule. These two will combine to form two molecules of water. Okay, students. आज की क्लास इतनी ही। अब आपको सर इंटरैक्ट करेंगे आप लोगों के साथ, सो स्टे हियर।